নমস্কাৰ প্ৰাইম নিউজৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই দীক্ষিত শৰ্মাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নতুন দিল্লীৰ শ্ৰীফৰ্ড অডিটৰিয়ামত, য'ত আজি এখন চিনেমা টেলিকাষ্ট কৰা হ'ল, এখন চিনেমা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল দৰ্শকসকলৰ আগত, যিখনৰ নাম হৈছিল এখন নেদেখা নদীৰ সিপাৰে। ডাইৰেক্টৰৰ নাম আছিল, ডাইৰেক্টৰ যিজন হয় তেওঁ হ'ল বিদ্যুৎ কটকী। তেওঁৰ পৰিচালিত এই ছবিখন আজি নতুন দিল্লীৰ শ্ৰীফৰ্ড অডিটৰিয়ামত দৰ্শকসকলৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল। আৰু প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিম যে হাউচফুল, সম্পূৰ্ণৰূপে হাউচফুল এটা শ্ব' গৈছে। আৰু এই বিষয়ে এই চিনেমাখনৰ ওপৰত কথা পাতিবৰ কাৰণে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা, বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাসকল, আৰু আমাৰ লগত আছে এই ছবিৰ পৰিচালক বিদ্যুৎ কটকী। প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ বিদ্যুৎ কটকীৰ ওচৰলৈ। প্ৰাইম নিউজৰ ফালৰ পৰা পোনপ্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ, ইমান সুন্দৰ এখন ছবি আপুনি নিৰ্মাণ কৰিলে। প্ৰথম প্ৰশ্ন মোৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলে, বা ময়ো এই চিনেমাখন চাইছিলোঁ, গোটেইখন মই আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাইছোঁ। মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আপোনাৰ এইটোলৈ যে আপোনাৰ এটা ক্ষোভ আছে নেকি ছিষ্টেমটোৰ প্ৰতি? নিশ্চয় আছে, প্ৰতিজন অসমীয়া যুৱকৰে হয়তো আছে। অকল ইণ্ডিয়ান মেণ্টেলিটি বুলি কিয় কওঁ, আমি অসমক কিয়নো তাৰ পৰা বাদ দিওঁ, আমাৰ সকলোৰে মেণ্টেলিটি সেইটো আছে। আপুনি এই যিখন চিনেমা বনালে, বেচিকেলি মই এইটো জানিব বিচাৰিম যে আপুনি মাজুলীকেই কিহৰ কাৰণে ল'লে? আপুনি মানে দেখা পোৱা গৈছে যে মাজুলীৰ বিভিন্ন অংশ আপুনি লৈছে, সম্পূৰ্ণ চিনেমাখন মাজুলী বেছড কৰা হৈছে। কিবা বিশেষ কাৰণ আছে নেকি মাজুলীক লোৱাৰ? নাই, এই ছবিখন যেতিয়া মই গল্পটোৰ কথা ভাবিছিলোঁ তেতিয়া মাজুলীক লৈয়ে ভাবিছিলোঁ। সেই সময়ত মাজুলী কিছুমান ঘটনাও হৈছিল, আকৌ ৰিপিট কৰিবলৈ মন নাযায়, সেইটো সকলোৱে জানো। বিৰাট অসহায় ফিল কৰিছিলোঁ, কোনেও যে আমি একো যেন কৰিব পৰা নাই, একো ক'ব পৰা নাই। সেই সময়ত যিখিনি ক'ব নোৱাৰিলোঁ সেই কথাখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ এই ছবিখনৰ যোগেদি। আপোনাৰ লগত সেই অনুভৱবোৰ, সেই দিনৰ মই এটা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আপুনি যেতিয়া শ্বুটিং কৰি আছিল, তাত বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ শ্বুটিং হৈ আছিলে, সেই তাৰ কিবা বিশেষ অভিজ্ঞতা আপোনাৰ মনত আছে নেকি বাৰু? সেইটো মোতকৈ এওঁলোক দুজনে বেছি ক'ব ভালকৈ, কাৰণ মোৰ কাৰণে মাজুলী একেবাৰে নতুন জেগা নাছিল, এওঁলোকৰ কাৰণে একদম নতুন জেগা আছিল। চ' আই থিংক দে উইল বি বেটাৰ টু টেল ইউ এবাউট দেয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ মাজুলী, বিকজ দিছ ৱাজ মোৰ অফ মাই হোম টাউন, আই মিন নট একচুৱেলি হোম টাউন, মাই অ'ন লেণ্ড। They will be better suited to tell you. ছাৰ, আমি আপোনাৰ লগত আৰু কথা পাতিম। আমাৰ লগত এই চিনেমাখনত যিসকলে মুখ্য চৰিত্ৰত নিজৰ অভিনয় কৰিছিল তেওঁলোক আছে। প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ বিদিতা। আপুনি পশ্চিমবংগৰ পৰা আহিছে, বেংগলৰ পৰা গৈছে, অনুভৱটো জনাওক, কেনেকুৱা লাগিল আপোনাৰ তাত? অনুভৱটো आसाम में पहली बार गई थी ये फिल्म करने, और वो भी माजुली जैसे एक जगह, काफ़ी रिमोट जगह थी, नो पोल्यूशन जोन। माजुली के बारे में जानने से पहले मैंने गूगल में सर्च किया था कि माजुली क्या है। मुझे पता चला कि इट्स बिगेस्ट रिवर आइलैंड। वहाँ की खूबसूरती देखती ही बनती है, इतनी अच्छी जगह है। पर इस जगह में टेररिज्म क्यों, यहाँ के लोग इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? इस जगह पे जहाँ की भूमि इतनी उपजाऊ है, वहाँ के लोग इतने दुखी क्यों हैं? तो मुझे बहुत ही दुख हुआ था, और ये जगह काफ़ी नेगलेक्टेड भी है। मुझे फिल्म करने के दौरान मुझे पता चला। देखिए, अगर श्रीनगर में बॉम्ब ब्लास्ट होती है या दिल्ली में सबको पता होता है, पर आसाम में कुछ होता है तो किसी को नहीं पता, कोई आसाम के बारे में कुछ कहता ही नहीं है। तो मैं आसाम के बाजू वाले स्टेट से हूँ, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फिर भी मुझे आसाम के बारे में ये सब बिल्कुल पता नहीं था। सिर्फ जब बॉम्ब ब्लास्ट होती है एक बार एक छोटा सा न्यूज़ आता है न्यूज़पेपर में, मुझे यही पता था।
तो वहाँ से लोगों से जब घुल मिल के मुझे बहुत कुछ पता चला वहाँ के बारे में। ये फिल्म के लिए मुझे एसएमएस सीखना पड़ा। मैं भालकोई अहमिया कबली नो किंतु बुझी पाओ, पता नहीं किस तरीके से मैंने डब किया, पता नहीं कितना जस्टिस भी किया इस कैरेक्टर के लिए, पर मैंने बहुत मेहनत की। 3 महीने लगे मुझे एसएमएस सीखने के लिए, और मैं स्क्रिप्ट हर रोज़ रिहर्स करती थी। मैं विद्युता के साथ बैठ के मैं डायलॉग रिहर्स सेशन करती थी, और जब तक ठीक नहीं होता वो मुझे छोड़ते नहीं थे। करीब मैंने 10-15 दिन डब किए। जनरली डबिंग 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती है, मैंने 10-15 दिन लिए। हर रोज़ 1-1.5 घंटा करके ही डब करते थे। আপুনি যেহেতু ক'লে আপুনি অসমীয়া বুজি পায়, আমি অসমীয়াতে কৈছোঁ আপোনাৰ লগত আৰু এই অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম। আমাৰ লগত আছে, আমি সকলোৱে পৰিচিত, সঞ্জয়জী আমাৰ লগত আছে। আমি তেওঁৰ পৰা জানিম যে মাজুলী এনেকুৱা এখন জেগা, অসমৰ এনেকুৱা এখন জেগা, যদিও ভাৰতৰ নহয় এছিয়াৰ ভিতৰতে এইখনক কোৱা হয় সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ, বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ, কিন্তু খুব কম সংখ্যক মানুহে জানে মাজুলীৰ বিষয়ে। আমাৰ লগত আছে সঞ্জয়জী আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁ মাজুলীৰ বিষয়ে তেওঁ কি কয়, কি সন্দৰ্ভত তেওঁৰ মনত কেনেধৰণৰ ভাৱ আহে। संजय जी, मेरा सबसे पहले आपसे जो सवाल है वो है कि असम, माजुली नहीं असम मैं पूछ रहा हूँ, असम इससे पहले आप गए थे? मैं शूटिंग से पहले तकरीबन 5 बार असम जा चुका हूँ, और ये मेरा 6वां ट्रिप था। और मैं हिंदुस्तानी में बात करूँगा क्योंकि मुझे असमीज़ आती नहीं। जितने डायलॉग याद किए थे सब भूल गए, रट्टा मारे थे। लेकिन मेरा डायरेक्टर एक चीज़ काफ़ी सेट पे बोलता था सबको, क्योंकि शोर होता था कोथा ना पातिबा तो वो मुझे थोड़ा बहुत याद है। लेकिन मैं इससे पहले गया था माजुली में, पहली बार गया। असम मुझे बहुत ही सुंदर स्टेट लगती है, और एक लेवल पर जहाँ पे सब बोलते हैं निगलेक्टेड है, वो ज़रूर है, लेकिन शायद उसी वजह से वो सुंदर भी है, क्योंकि जितनी इन्वेजन कम हुई हो उतना ही नेचर के पास रहती है जगह, और साफ़ सुथरी रहती है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत लोग मुझे बहुत पसंद है। असमीज़ खाना बहुत पसंद है, फ़िश टैंगा मेरी फेवरेट फ़िश डिश है। तो वहाँ पर रोज़ मेरी यही एक रिक्वायरमेंट होती थी कि यार मुझे फ़िश खिला दो। आपने इस मूवी में जो कैरेक्टर प्ले किया है, जो मैं अभी हूँ, हम जो जर्नलिस्ट है उसी का आपने कैरेक्टर वहाँ पर प्ले किया है, और ऐसा हम जर्नलिस्ट की ज़िंदगी में आता रहता है। मैंने भी बहुत बार फेस किया है। जब आप ऐसे डिस्टर्ब एरिया में जाते हो तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं, आपको टेररिस्ट ग्रुप से आपको थ्रेटन आता है, और कहीं ना कहीं आपने फिल्म में ये दिखाया भी गया है, आपको किडनैप भी किया गया है। तो एज अ जो कैरेक्टर आपने वहाँ पर प्ले किया था, उस तरीके से मैं जानना चाहता हूँ कि उस कैरेक्टर को प्ले करके आपको कैसा लगा था? देखिए, जो मेरा किरदार है, जो कैरेक्टर है, वो एक जर्नलिस्ट है, लेकिन वो एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम वॉर जर्नलिस्ट नहीं है। वो लिखता है लेजर और ट्रैवल के बारे में, तो बहुत ही एक प्रोटेक्टेड जोन का जर्नलिस्ट है, तो उसकी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स वैसी नहीं है। सो आप किसी एक फैशन जर्नलिस्ट और एक क्राइम जर्नलिस्ट जो रिपोर्टर्स होते हैं, उनकी अप्रोच, उनकी थिंकिंग बहुत अलग रहती है। तो हो सकता है कि लोग सोचें यार जर्नलिस्ट ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, वैसा क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज वो एक ऐसे माहौल, ऐसे एनवायरनमेंट में ट्रेंड है, जो सिचुएशन फेस करनी पड़ती है उसे, वो ही कांट हैंडल इट। सो ही इज़ लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सो मैंने पर्सनली स्पीकिंग जस्ट सेड ओके, आई एम अ कैरेक्टर हु राइट्स अबाउट स्पास एंड लेजर एंड ट्रैवल। सो ट्रैवल का इंटरेस्ट है, बट यहाँ पे जो काम करने जा रहा है वो थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव है, थोड़ा पर्सनल है, in search of a lost friend. So उसके reactions and everything is not completely trained, you know. So he is also vulnerable, like I would be in any situation. If I'm taken hostage, how vulnerable I will be, he will be the same. The only difference is he has a press card which he tries to use to get away from a situation, but he is scared like any human being would be. संजय जी, हम और आपसे बात करेंगे, हम हैं अभी बहुत सी बातें करनी है। संजय जी और विदिता और आमार आसे कटकी डांगरी आमार लगत आसे, आमार अসমरे मानुह তেওঁৰ লগত আমি আৰু কথা পাতিম। মই এতিয়া আহিব বিচাৰিছোঁ বিদিতাৰ ওচৰলৈ। মই এই কাৰণে আহিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁ আমাৰ একেবাৰে ওচৰে, পশ্চিমবংগৰ তেওঁৰ ছোৱালী, পশ্চিমবংগতে ডাঙৰ দীঘল তেওঁ হৈছে। তেওঁৰ পৰা এইটো জানিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ যিটো সমস্যা বিগত 30 বছৰ ধৰি, 3টা দশক ধৰি যি এটা সমস্যা হৈ আছে, সি লাগিলে আইডেণ্টিটিৰ ক্ষেত্ৰতে, নিজৰ পৰিচয়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সন্ত্ৰাসবাদৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, যি ধৰণৰ এটা
পৰিস্থিতি বিগত 3টা দশক ধৰি অসমে ভুগিব লগা হৈছে সেই বিষয়ে তেওঁ কিমান জানিছে বা তেওঁ ইয়াৰ আগতে গম পাইছিল নাই মই আশা কৰোঁ আপুনি বুজি পাইছে মই কি প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ চ' আপুনি আনচাৰটো দিলে মই ভাল পাম जो कि मैंने पहले बताया, न्यूज़पेपर में इतनी छोटी आर्टिकल है तो क्या होता है आसाम में ये मुझे पता ही नहीं मैं पश्चिम बंगाल से हूँ फिर भी मुझे पता नहीं है कि आप हमारे पड़ोसी हाँ पड़ोसी होते हुए भी मुझे पता नहीं तो आसाम के लोग आप सोच सकते हैं कि उन पे क्या बीत रही होगी और आसपास के किसी भी लोग को भारत के जनताओं को ये पता नहीं है तो किस तरीके से ये स्टेट नेग्लेक्टेड है तो ये जब मुझे पहली बार वहाँ जाके ही पता चला और मुझे बहुत ही दुख हुआ যদি মই আপোনাৰ মাজুলীৰ বিষয়ে সোধোঁ মাজুলী এনেকুৱা এটা কি বস্তু আছে যিটো আপুনি আজিও মনত পেলায় বা এতিয়াও আপোনাৰ মনলৈ আহি থাকে এই বিষয়টো बहुत कुछ है बहुत कुछ एक्चुअली वहाँ जो ट्राइबल विलेज में हम लोग थे मिसिंग मानुहोजन और उनके साथ मैं थी तो वो लोग मुझे प्यार से हर रोज़ नए नए खाना बना के खिलाते थे ब्राउन राइस मासोर टेंगा ये सब गुड़ और दूध गुड़ के साथ चाय ये सब था फिर रात को तरह तरह के वो इंसेक्ट्स और बर्ड्स की आवाज़ आते थे एक बर्ड था केतकी उसका आवाज़ कुछ था मैं उसके साथ रात को खेलती थी म्यूजिकल ये आंसर मेरा होता था फिर बर्ड आंसर देती थी फिर काजीरंगा भी घूमने गए वहाँ भी तरह तरह के बर्ड्स और हम रिनोसर से मिले बहुत बहुत घूमे बहुत अच्छा लगा और वहाँ के लोग इतने सिंपल है इतने अच्छे हैं शूटिंग देखने आते थे और जब हम लोग कहते थे कि कथा ना पाती बा मोने मोने सब चुप हो जाते थे और चुप होकर देखते थे ये सब बहुत मज़ा आया मुझे आसाम में काम करने में আমাৰ লগত ইয়াৰ ক্ৰু যিসকল মুখ্য চৰিত্ৰত যিসকলে নিজৰ অভিনয় কৰিছিল তেওঁলোকো আছে আৰু আমাৰ পৰিচালক মহোদয় আমাৰ লগত আছে আমি তেওঁৰ লগতো ইয়াতে কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈ পৰিছে এটা চমু বিৰতিৰ পিছত আমি আমাৰ যিজন পৰিচালক মহোদয় আছে আমাৰ কটকী ডাঙৰীয়া আছে কটকী দা আছে আমাৰ লগত আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম আৰু তেওঁৰ পৰা আৰু বিষয়ত কথা জানিব বিচাৰিম কাৰণ তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ নিজৰ এই চিনেমাখনত দিছে সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা বিশেষকৈ নেশ্যনেল যি মিডিয়া আছে সেইটোৰ তেওঁ এটা কথা কৈছে সেইটো বিষয়ে আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে লৈ লৈছোঁ এটা চমু বিৰতি